लिखेंगे। एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट, कुछ चीज फ्यूचर में होने वाली है। टेल मी, टेल टेल टेल। We will go to a party tomorrow. यस, वील गो टू अ पार्टी टुमारो। We have a trip tomorrow. यस, करेक्ट। Please, you नाउ प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। I will tell you we will go. आई विल टेल यू वी विल गो। यस, बोलो बोलो बोलो। We will go. बेटा सारे एग्जाम्पल आप ही दे रहे हो, वेट। आप और कोई बच्चे, यस टेल मी, बोलो। I promise my mother that I will complete it. I promise my teacher that I will complete my homework. आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। ओके, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। अगर हम, सही है, आप सही बोल रहे हो। ओके, आई प्रॉमिस आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। Ma'am, यस I will promise you we will go to a party tomorrow. बेटा हो गया प्रॉमिस, अब रिक्वेस्ट। Please don't go there. वेयर इज विल? प्लीज डोंट गो देयर, वेयर इज विल? रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज गिव मी A pen. a box or whatever? Will you please? Give me a crayon. Please give me a hot milk. Will you please give me hot milk? Now offers, request or offers same ही है ना? Will you please give me hot milk? I'm requesting, मुझे hot milk दे सकते हो? हाँ बताओ। Will you give me the tea? Will you give me the tea? The tea. ये क्यों बोला बेटा? A particular. Will you, yes, will you give me A tea. नहीं. a tea? Will you give me tea? Will you please give me a cup of tea? Right? Yes. Ma'am, please give me a milk. Ma'am, please give a cup of, yeah. Ma'am, Yes. X को आपने last example लिखाया. Yes. Question mark नहीं आ सकता. Which one? Yeah, बिल्कुल question mark. Yes, question mark आएगा. शांत. Okay. Shall. Shall का negative. Shall not या फिर shan't. This expresses a future possibility, a suggestion, Warning and threat. warning and threat. Yeah. पहले ही कर दिया था ना. Yes, एक्चुअल में वो मैंने विल वाले प्लेस में आपको ये बता दिया था. That was my mistake. I'm sorry for that. Shan't. Okay, example. Yes. Possibility. Example of possibility. Tell me. Why you late? Today's my district match. Okay. Sit fast. Book निकाल लेना. Today was your district match. हो गया ना? It was. Yes, tell me example of future possibility with the word shall.
It shall. It shall से बना लो. It shall. Yes, rain tomorrow. बेटा वो हो गया, फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो गई है, सजेशन. It shall go to the market. अरे सजेशन. It shall storm tomorrow. You shall study hard to get good marks. Then you shall grow trees. Warning or threat? Shall is used with the first person. First person. ये क्या पूछ रहे हैं? Shall is used with हाँ, the first person. First person. अच्छा, shall is used with the first person. किसने कहा? सबने पढ़ाया था. अच्छा, सर ने पढ़ाया था. तो मैंने ये गलत किया है क्योंकि मैंने तो सेकंड पर्सन के साथ लगाया है, यू के साथ. हाँ, second person के साथ सबने तब बताया था. हाँ हाँ. We will use verb second form with suggestion, advice, threat. तो टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. यू आर सेइंग आई हैव रिटन इट रॉन्ग. मैं आई लगाऊंगी यहाँ पे. क्यों? वाई? क्योंकि मैम वहाँ पे सजेशन यूज हो रही है. यस, बिकॉज यहाँ पे सजेशन यूज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड पर्सन के साथ शैल यूज किया है. ओके. और जो इसने बात बताई है, जो इसने मेंशन किया है पॉइंट, कितने बच्चों को ये चीज़ पता है? सर से पढ़ा है ना? हाँ जी, बताइए आप, बताओ. जब शेयर होता है वो जब सजेशन करता है तो फिर वो सेकंड पर्सन के साथ. और फर्स्ट पर्सन के साथ कब आता है? क्या बोल रहे हो? जब सजेशन होता है तो सेकंड पर्सन के साथ आता है. फर्स्ट पर्सन के साथ जब वो. टेल मी, किसी और को भी पता है? सिर्फ इन्हीं दोनों बच्चों को कैसे पता है ये पॉइंट? आप दोनों ही थे क्लास में उस दिन, आपको पता है? ये पीछे वाले को. यस चिराग, डू यू नो दैट? सिट. ओके, वार्निंग और थ्रेट. You shall not go to the restricted area. This is a warning. What is restricted? मतलब जहाँ पे जाना मना हो, वर्जित. Restricted is वर्जित. प्रॉपर्टी में नहीं जाना. Yeah, right. You shall not. Go to the restricted area. Yes. Go to the Restricted area. Yes. Ma'am, Yes. shall you go there? Huh? Ma'am, please give me a sign. Is it correct? Shall you go there? बेटा क्वेश्चन में नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म के, सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है? Ma'am, you shall study more, either you will fail. Yes. This is a suggestion also and a kind of warning also. ठीक है? What was the example? You shall study more, और इधर नहीं, और you will fail. So एक तरीके की वार्निंग भी है या फिर एक सजेशन है कि आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, राइट? Yes. Shall not spelling is wrong.
shall not spelling is wrong. Where? बेटा इट शांट. शांट आप shall not भी बोल सकते हो और शांट भी बोल सकते हो. मैंने ये क्यों यूज किया है? व्हाट इज दिस? मतलब और, ठीक है, Synonym. या सिनोनियम. या सेम मीनिंग. shouldn't और should not. चलो, what are its functions? It expresses suggestion, or advice in general. चलो, tell me a sentence with a suggestion which in which the word should is used. Tell me. Ma'am, you have done should. should कब किया हमने? You should go there. should कब किया हमने? मेरा it was good. Yes, tell me suggestion. खड़े हो जाओ, बोलो. You should do this. कोई अच्छा सेंटेंस बनाओ ना, बढ़िया सेंटेंस बनाओ. Ma'am, You should. we should keep our city clean. Yes. We should keep our city clean. अच्छा, पर ये सजेशन है या फिर एडवाइस है? Advice. एडवाइस है. Ma'am, we should not waste the food. We should not waste the food. This is also advice, suggestion. We should plant more trees. We should. ये भी तो एडवाइस ही है. Yes. You should study English. You should have a cold coffee. Yeah, it is suggestion. ठीक है. You should study hard. You should study hard. This is advice. You should have a cold coffee. This is suggestion. वो suggest कर रहा है उसको कि आप cold coffee ले सकते हो. ठीक है? You should study English. Yes. Would you prefer tea? Would नहीं है बेटा. Should you? Should you what? Should you prefer tea? नहीं. Should हम question sentence में क्यों use करेंगे? They are used for just suggestions or advice in general. ठीक है? Ma'am, Yeah. should you stop wasting water? बेटा मैंने अभी क्या बोला? मैंने वहाँ पे लिखा है, उसका यूसेज लिखा है मैंने कि आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो या क्वेश्चन सेंटेंस यूज़ कर, नहीं लिखा है ना, तो मत करो. सिंपल. नाउ वुड. I'm doing व्हाट आर यू डूइंग? this example. एक ही एग्जाम्पल लिखो. या आई एम राइटिंग दैट. आप ये बोलना था आपको. मुझे लगा कोई डाउट है तभी बोलो. सिट. What is the second of should? वेट वेट वेट. Should not and left beside left. Yes, या ओके. व्हाट आई हैव रिटन हियर, वुड इसका नेगेटिव है, वुडंट या फिर वुड नॉट.
ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड शैल। कोई ये नहीं सोचेगा कि शैल का पास्ट टेंस शुड है। किस किस को लगता है ये? बहुत बच्चों को लगता है शैल का पास्ट टेंस शुड, लगता होगा ना, लगता है ये। बट शैल और वुड, शैल और विल दोनों का पास्ट टेंस इज वुड। ओके, नाउ दिस वुड और वुड नॉट और वुडंट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, कुछ चीज़ पॉसिबल है, इवेंट्स, प्रोमिसेस, सॉरी पॉसिबल था इन द पास्ट। ओके, कोई भी पॉसिबिलिटी, इवेंट्स या फिर प्रॉमिस जो कि पास्ट में पॉसिबल था। ओके, नाउ थर्ड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ पोलाइट या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में कब यूज होता है? जब हम कोई पोलाइट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम वुड यूज कर सकते हैं, राइट? यस, ओके, एग्जाम्पल, मिडिल, इफ आई गेट साइड, आपको पढ़ाएगा कौन? लेट मी राइट, ओके ओके, टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पास्ट टेंस ऑफ विल एंड शैल। एग्जाम्पल, हाँ हाँ, वुड का एग्जाम्पल पास्ट टेंस में। अरे, और अभी मैंने यही एग्जाम्पल आपको, वुड यू प्रेफर अ टी कैसे हो सकता है? What? I would used to go to. I would go to school by bus. No. Yes. I would like. I used tea. I would like to have Past tense में. I would take tea. I would take tea rather than coffee. have taken. I would have taken. I would have taken a better subject than this. I would have taken a better subject than this. ठीक है, मैं पहले better subject ले सकती थी। Expresses possibility, चलो बताओ। Then side please. Possibility in the past, tell me. Then side please. तो यही सेंटेंस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट है ना, ये पॉसिबल हो सकता था ना पास्ट में, ये पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस हुआ। I have to. नो, नाउ इवेंट, टेल मी एन एग्जाम्पल विद इवेंट। Ma'am. टुमारो कैसे बेटा? पास्ट में। द पार्टी Yesterday. वुड हैव टेकन प्लेस। He would be coming today. Yesterday is the party. अरे येस्टरडे इज द पार्टी कैसे हो सकता है? येस्टरडे के साथ आप इज कैसे यूज कर रहे हो? Yesterday was the party. येस्टरडे वॉज द पार्टी एंड वेयर इज वुड हियर? कैसे एग्जाम्पल बता रहे हो आप ये? एवरीथिंग वाज ऑलराइट। I would have seen that car. I would have Party seen would that have taken car. Ma'am, I have fun. Ma'am, See, the party would have taken place if everything was all right. पार्टी हो सकती थी अगर सब कुछ सही रहता तो। ओके, ma'am, would you like to go to the party? ओके, यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट हियर। वुड यू Would you like to go to the party? वुड यू लाइक टू गो टू अ, हाँ ठीक है, वुड यू लाइक टू गो टू द पार्टी, वेरी गुड। मैम, ये क्वेश्चन मार्क मुझे कॉमन लग रहा है। प्रोमिसेस इन द पास्ट, कोई बता सकता है इसका सेंटेंस? प्रोमिसेस इन द पास्ट। I was promised you that I was नो, बताओ।
टेल मी सम या I promised you that I would crack the exam. आई प्रॉमिस यू दैट आई वुड क्रैक आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई वुड क्रैक द एग्जाम. हाँ ठीक है. Yes. Okay. Yes. मार्कर का ढक्कन वहाँ नीचे गिर रखा है. Okay. पेन का है वो. मार्कर का. बेटा फिर आप लेट हो जाओगे लिखने में. आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो. Wait. Yes. See, the modal may. What is the negative modal here? May not. Then what is the function of it? It expresses positive या फिर strong possibility of an event. ठीक है कि ये चीज़ हो ही हो सकती है. बहुत strong possibility है. And next it is used to seek or grant permission. ठीक है, किसी से permission लेना या किसी को permission देना, we can use may in it. Okay? Example. First one. It may rain today. It may be. May be क्यों लगाया बाबू? B क्यों आया? Continuous. नहीं आएगा ना अभी. अभी आप may के साथ यूज करो. To seek or grant permission. May I? May I? Yeah, may I come in? Yes, you may. See, this is seeking permission and this is granting permission. Okay? What is the meaning of grant? देना. And seeking मतलब मांगना. Possibility. Ma'am, 1 second. I don't know now. मैं मिटा रही हूँ. Ma'am, I am doing events. Events. Promises. बेटा आप दूसरे बच्चे से लिख लो. आप मुझे क्योंकि लिखना है. ये क्लास लाइव चल रही है. ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम का वो करो. टाइम का ध्यान दो.
might or might not. See, might is first past tense of may. Expresses weak or negative possibility of an event. चलो एग्जाम्पल of might. It might be rain today. मी बी क्यों आया? It might rain today. What is the meaning of might? What is the meaning of might? क्या लिखा है मैंने? अरे see, might negative is might not. It is the past tense of may. ठीक है? Now it is used for expressing weak या फिर negative possibility of an event. की possibility है भी और नहीं भी, मतलब ठीक है, बहुत कम chances है. Yes. Question mark. हिंदी में ऐसे बोलते हैं शायद कंपल्शन. What? हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि शायद. शायद. Yeah. Tell me an example of might. It might rain today. Yeah, it might rain today. It might rain today. It's my birthday. Okay. Now express weak or negative possibility. वही चीज़ है. It might rain today. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. I might take the class today. मैं ले भी सकती हूँ, नहीं भी ले सकती. There is a very weak possibility in it. Okay. ओके. नहीं, जब मैं बोर्ड की तरफ देख रही हूँ आप लोग बातें क्यों करने लग जा रहे हो? एम आई स्टडिंग फॉर माई सेल्फ? मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ. पिछली बार भी आपको बोला था ना, किसी की भी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, कोई भी ढंग से नहीं बैठा है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कौन सा एग्जाम उसको देना है, कौन सा नहीं, है ना? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस मोर देन यू, राइट? है ना? आप लोग को तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. क्यों भाई? must not negative, and what is the function and usage of it? It is used to express a necessary or compulsory action. ठीक है, कोई रूल या फिर कोई रेगुलेशन के बारे में बताना, कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन देना, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी पड़ेगी. ओके? हाँ, ड्यूटी ऑल्सो. ड्यूटी इज द सेम थिंग ना, कंपल्सरी एक्शन या रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम बोल रहे हैं दैट कम्स अंडर ड्यूटी ओनली. ओके, एग्जाम्पल नाउ. चलो
You must wear a helmet while driving a two-wheeler. India must win the World Cup. पहले मैं ये लिख लूँ एग्जाम्पल, फिर आप बता देना when I'll ask. You must wear a helmet while driving a two-wheeler. अच्छा सी, ये तो आपका दो चीज़ों में आ गया ना. दिस इज अ नेसेसरी और कंपल्सरी एक्शन ऑल्सो एंड इट कम्स अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो, राइट? क्योंकि रूल भी यही है ना कि हमें हेलमेट लगाना पड़ेगा while driving a two-wheeler, right? Now strong suggestion or advice. You must Have a pencil. अरे you must have a pencil. This is a strong suggestion. Why will I have a pencil? You must visit the doctor before your condition worsens. आपको डॉक्टर से मिलके आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाए. ओके, तो ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? दिस इज द सजेशन ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग सजेशन ऑल्सो एंड एन एडवाइस ऑल्सो, राइट? बेटा आप लोग को नहीं पढ़ना है ना, आप बोल दो पहले, क्योंकि आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं ना, इतना रेस्टलेस हो रखे हो. क्या हो गया है? नहीं पढ़ना है? बोरिंग हो रहा है? देन कोई डाउट है? तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मैं जैसे ही पीछे लिखने को हो रही हूँ, आप लोग बातें कर रहे हो एक दूसरे से. वाई? और वहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठा था, मैंने एक ही बच्चे को बिठाया था. आप कैसे गए उधर? आप दोनों क्यों गए उधर? मैंने एक ही बच्चे को बिठाया था. अच्छा, ओके. Written? I am erasing this. I don't know what time था आपके. Yes, ma'am. Ma'am, Akshat is disturbing me. I am not saying something. क्या बोल रहा है वो? Ma'am, मैं देख रहा था कि कभी लगी मैं कंटिन्यू में क्या ऐसे कर रहा हूँ. Ma'am, also is used in a moral obligation. Yes, moral obligation. Duties. Yes. Ma'am, example do. Yes. We ought to respect your teachers. Yes. We have to always respect our teachers. Also, ought to is very close to should. Okay. Ought to और should almost same है. ठीक है. Example, see first ought to positive modal, then negative is ought not to, and it is used to express moral obligations, duties and actions that affect others. Okay, जो दूसरों को अफेक्ट कर सकते हैं. Like you ought to obey your parents, right? ये आपकी ड्यूटी भी है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है. Okay? People ought to follow the traffic rules. Yes, people ought to follow the traffic rules. किसने बोला एग्जाम्पल? वेरी गुड.
वेट, हम 10th वाले में क्या लिखा है? You must और टू, इलेवेंथ, नीड टू, need to is used with requirement. Ma'am, यस यस यस, टेल मी. need to is used with requirement. रिक्वायरमेंट, यस, यू रिक्वायर समथिंग, कुछ चीज़ आपको ज़रूरत है, लाइक और I need to a pen. अच्छा, आई नीड टू अ पेन, आई नीड अ पेन, है ना. तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ यूज फॉर कंपल्सरी एक्शंस, जो एकदम कंपल्शन में होना चाहिए कि अभी होना ही होना, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. एक्सप्रेसेस कंपल्सरी एक्शंस. एग्जाम्पल बताओ. I think you need a pen. अरे नीड टू, नीड टू, Ma'am, I need to help him. you need to listen to your teacher, He need to work hard. while studying. अभी क्योंकि ये बहुत कंपल्सरी लग रहा है मुझे, यू नीड टू लिसन टू योर टीचर वाइल स्टडिंग, क्योंकि मैं बोले जा रही हूँ एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. सुन ले रहे हो एंड यू आर नॉट इम्प्लाइंग इट. किसी की भी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है. क्या हो गया? स्ट्रेट क्यों नहीं बैठे हो? बैक स्ट्रेट एवरीवन. रवि, आपने कब लिखा था कॉस्ट्यूम? हैज़ टू या फिर हैव टू या फिर डजंट हैव टू. ये कहाँ पे यूज होता है? टेल मी. सी, इट एक्सप्रेसेस फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस. कोई सर्कमस्टांसेस, कोई हालात ऐसे जो हम पे फोर्स किए गए, तुमको ये करना पड़ेगा, राइट. फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस मीन सिचुएशंस, हालात. You have to pay me. You have to pay me the billed amount. She has to do it. She has to wait. She has to question this before the class. Has to have. Has. She has to answer this. ऐसे आंसर लिख देती हूँ. She has to answer this before the class. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई भी डाउट नहीं है किसी को? वाई इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ मैं? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो कोई तो डाउट होगा ना? No, ma'am. मतलब मैं आपको समझा पा रही हूँ? Yes, ma'am. पक्का? Yes,
ओके मैम ओके लिखा मैम आपने 12th पे हैज़ टू, हैव टू। सी इसी का पास्ट बता देती हूँ। 13th हैड टू, हाँ सॉरी, एक्सप्रेस 4 circumstances। सी हैड टू और इसका पास्ट क्या है? डिडंट हैव टू। डिडंट हैड टू नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। डिडंट हैव टू, डिड के साथ कभी भी हैड यूज नहीं होता, ठीक है। Expresses 4 circumstances of the past। पास्ट में कोई सर्कमस्टांस ऐसे पड़े जो बहुत फोर्सफुल थे, जो करने ही करने पड़े। आई हैड टू, आई हैड टू रन फ्रॉम द, आई हैड टू रन फ्रॉम द, नो, आई हैड टू रन फ्रॉम दी, आई हैड टू रन फ्रॉम द हॉस्टल, मुझे भागना पड़ा हॉस्टल से। एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल वो भी कर सकते हो। यस, सी मोडाल्स आर कंप्लीट हियर। ओके, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, समझ में आया ना प्रॉपर? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो, आस्क मी। अभी बताओ, कोई पॉइंट नहीं। सर्कमस्टेंस मीन्स हालात, सिचुएशन, ठीक है। बस सर्कमस्टेंस ही पूछना था और कुछ नहीं। यस, हाँ, यूज टू नहीं करा है मैंने। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। आई थॉट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, आई एम राइटिंग 14 हियर। ओके, used to, used not to, expresses past habits और routines, मतलब वो हैबिट या वो रूटीन जो आपकी पास्ट में कभी थी, ठीक है। लाइक ये तो वुड की तरह है ना मैम। नहीं बेटा, वुड की तरह कैसे हो सकता है, उसमें रूटीन तो नहीं था ना। रूटीन जो हमारी हैबिट्स थी पहले। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली, अब नहीं जाता हूँ। मैं पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ। When I was a kid, I used to go to school by bus. यस, ये भी ठीक है। टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स डेली। I used to go for morning walks daily. Habit या routine, okay? Understand?
या जल्दी लिखो, देन वील डू द एक्सरसाइजेस. Ma'am, 70 side. बेटा अब मेरी राइटिंग क्लियर है आपको? एक्सक्यूज मी, यस, कर लिया आपने? जल्दी करो, देन विल डू दी एक्सरसाइज. यस. नहीं अभी नहीं. नो नो, कुछ ही मिनट्स बचे हैं. नो क्या बेटा अभी नहीं बोला ना, पहले मुझे कंप्लीट करने दो. यस. एक्सरसाइज नाउ. मुझे वो दूसरी बुक देना RAMC की जो आपके पास थी यहाँ पे, वो बड़ी वाली बुक. वो किसकी थी? और वो किसकी थी? सैनिक थी शायद. रुको रुको, कौन सी थी वो बुक थी? दो. किस बात की बातें हो रही हैं? क्यों बातें हो रही हैं? सबके पास ये वाली बुक है क्या? किस किस के पास है मुझे बताओ. सबके पास ये वाली बुक है. यार इसमें ना क्वेश्चंस नहीं है मोरल्स के ना. अच्छा ये आगे भी एक्सरसाइज. ओके ओके रुको रुको. या ओके, ये पीछे पास कर दो. ओके डन एवरीवन. Example writing last one. आई एम इरेजिंग इट. I used to go for morning walks daily. क्योंकि जब तक मिटेगा नहीं आप यस नहीं बोलोगे. चलो सब अपनी बुक खोलो. Book खोल दी मैम. बुक खोलो. बुक खोलो. ये मेरी है. बुक खोल के यहाँ पे रखो. एक्सरसाइज. या वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5A. हाँ ये बुक जल्दी खोलो. 5A पेज नंबर 71. यस. मेरी आँख भी तुम्हारी तरफ यहाँ देखो. हुई ना? लाल लाल हो गई ना? लल्ला नहीं है. छुआ. यस वही. ओके बेटा 71 पेज नंबर. यस 71 पेज नंबर. आपके पास 3 बुक्स हैं. एक इधर दे दो. 2 बुक होनी चाहिए ना इस टेबल पे. लो आपके पास 2 बुक्स है ना? ओपन यार. 71 पेज नंबर. ओके start doing this exercise. See in the first exercise you have to state whether the following words are verbs. ठीक है या फिर नहीं है. ठीक है
Yeah, only answers. Okay. Just write 5A exercise 1. Okay, and the answers. 5A 5B. 5A. जब मैं 5A बोल रही हूँ तो 5B कैसे हो सकता है? Exercise 5A. You have to tell whether it's a verb or not. See the word begin. Is it a verb? Yes. So they have written V. Yeah. Now the word carry. Is it a verb? तो V लिख दो बस. Simple. Do it fast. Only 5 minutes for this exercise. Only 5 minutes. And answers only. बेटा आपने लिखा क्यों नहीं है exercise 5A? Yeah, 5A. Question 1. Question 1. Yeah. Done? Only 5 minutes for this exercise. Okay, ma'am. Exercise 5. मतलब कोई बात नहीं, नंबर सही कर लो. Y and N. Yes or no? Done? 2 minutes left. Yes. सिर्फ आंसर ही करना है ना बेटा. आप स्लो, आप बहुत स्लो. बेटा आप कर रहे हो? Okay. First begin is verb, carry is verb, biggest is adjective, guidance is guidance is abstract noun. Travel, build, break, believable, no, yeah, scare, scared यार है ना, scared डराना. Cook, bright, adjective. Wear, think, flew, grab, swear. हाँ swear कसम खाना. Tantrum, no, tantrum नहीं है. Tantrum क्या है? हाँ, fist मुट्ठी. No, carriage, garbage, no. Yes. Now exercise 5B. What do you have to do in this? Select the verb from the given options to fill in the blank. Okay. Fist. My mother prepares lunch for me. अब इसमें से आपको verb बताना है. Verb क्या है? ठीक है? Right. किसका? Scare yes था. Yes, it's a verb. अच्छा, let's discuss this. हाँ, अभी लिखते नहीं है. ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ. ये आप होमवर्क में करना, लिखने वाला काम.
we'll discuss this exercise. 5B. Okay? 5B. Yeah, 5B. Okay. Some attentive. Please be attentive. Yes, ma'am. Body language. Okay. My mother prepares lunch for me. Prepares. I always speak the truth. Speak. The police caught the thief. Mary plays tennis every morning. She bought a brand new Audi car. Bought. Bout nahi, bought. Show me your hands. The old man walks slowly in the park. He dislikes loud music. Loud कैसे हो सकता है? Loud is adjective. Dislike. बेटा पहले सुन लो क्वेश्चन, सिर्फ आंसर नहीं देना है आपको. We found a deserted house. Found. The sun shines brightly throughout the day. He writes a page every day. These birds are beautiful. Beautiful is adjective. Are. He has written the complete book. Has written. Has written. Helping verb भी तो verb ही है ना. Has written. Raman is a brave boy. Is. Boy कैसे हो सकता है? Boy is a noun. उद्दू. Boy noun नहीं है. Anaya and Manya are twin sisters. Yes. Okay, next. Pick out the verb from the following sentence. हाँ, ऐसे आपको verb निकालना है इसमें से, ठीक है? Same जैसे पहले किया था. The host greeted everyone cordially. Greeted is verb. We all walked. Ben will feel awful about it. Will feel. The food smells so good. These paintings are beautiful. April comes after March. He washes the dishes every evening. The censor has objected. Has objected. The customers wanted some clarity. The students were doing their work. Were doing. All the students speak English properly. I have paid him for his efforts. Have paid. बेटा जब भी आप वर्ब बोल रहे हो ना, अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी है ना, उसको भी बोलो. उसको क्यों छोड़ना है भाई? वो भी वर्ब का पार्ट है. ओके. She was late for office. Was late. He has a large collection of books. Has only. Large तो बेटा एडजेक्टिव हो गया ना. We have been playing since morning. Have been playing. ठीक है. Okay. Transitive or intransitive? John is sleeping. Jonathan baked a vanilla cake. And what is transitive है? ठीक है. Object क्या है इसमें? क्या forgot? तो वो मेरी गलती है. आपने बुक खोली है अपनी. मैं एग्जाम ये करवा रही हूँ एक्सरसाइज, आपने बुक भी नहीं खोली है. ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव क्या होता है? टेल मी. जिसमें मैम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. यस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है. और इंट्रांजिटिव? जिसमें ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है. जिसमें सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होता है. देयर इज नो ऑब्जेक्ट. किटी स्पोक लाउडली. ट्रांजिटिव. 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 यस, intransitive. यस, तो ये क्या है? intransitive है. Ben bought a badminton racket. Transitive. She slapped him tight. बेटा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? intransitive हुआ ना. Peter writes neatly. Tom speaks the truth. Okay. चलो. Exercise 5E.
मैम ये हमें सारी करनी है। बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, पढ़ने का मन नहीं है तो फिर नोटबुक को सारी करनी यस, क्यों नहीं करनी, यस बिल्कुल सारी करनी, यस सारी करनी है, नहीं करोगे नो नहीं, बाद में। ओके, मेरी इज हैप्पी, इज इट एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। रिया सिंग्स अ सॉन्ग, टोनी रोड एन ऐसे, इसका मतलब क्या होता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का? चलो नेक्स्ट, चलो। टॉम वॉन्ट्स टू स्विम इन द पूल। अरे अच्छा सॉरी, मारिया लर्न 2 लैंग्वेजेस। आगे बताऊंगी। टॉम वॉन्ट्स टू स्विम इन द पूल। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट तो पता है ना, क्यों है नॉन फाइनाइट? ये तो पता ही तो करवाया था पिछली बार। There are 20 unread messages in your mail inbox. Unread. Yes. Okay, next. Joey dipped his finger in boiling water. My husband doesn't like to go for shopping. जिरुन क्या होते हैं, क्या बताए थे? वो एक स्पेसिफिक फॉर्मल होता है, स्पेसिफाइंग फॉर्म होता है जिनके साथ बेस फॉर्म यूज होते हैं। राइट। सिर्फ पूरी क्लास में इसी बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट कैसे पता है? आप लोग क्या सिर्फ क्लास के लिए पढ़ते हो, मतलब क्लास में पढ़ा और वहीं पे भूल गए, अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, कोई नहीं, ऐसे पढ़ते हो क्या? किसी को भी फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पता नहीं है, क्यों भाई? ओके, टेस्ट में देखूंगी आपको तो। चलो नेक्स्ट 5F। एनी बताओ, ध्यान कहाँ है? वहां देखो। यस, he was riding a bike. The people were. Fourth, does. Fifth, sixth, did. We, this honey, was भी हो सकता है, इस भी हो सकता है। The children, was कैसे बोल रहे हो यार? Children is plural. The students are. वर कहाँ है वहां पे? किससे बोला वर? He got injured and they dash not like to drink cola. She dash not like eating popcorn. Does not. The match dash cancelled due to rain. Was. These grapes do not. बेटा ग्रेप्स प्लूरल, तो इसके साथ डू नॉट यूज होगा ना, डू यूज होगा ना। यू डैश यू लाइक टू हैव सम टी, गुड। माई ग्रैंड मदर
cannot walk fast due to pain in her knee. My dad it मेरे से I will. Dash, you recall the types of verbs. Can you? Dash, you feeling better now? Dash, I open the window. May I open the window? Everyone must. You should. She can cook for 8 people. No, she cannot cook for 8 people. So she is ordering food online. We dash book the flight. We need to. The old man used to. ought to कैसे हो सकता है? उसकी क्या ऑब्लिगेशन है भाई? वो तो ओल्ड मैन है. वो क्यों उसको सुनानी पड़ेगी स्टोरी? यूज टू, वो सुनाया करता था स्टोरीज. ठीक है. Dash, you come and help me. One dash gather grapes from thistles. One carrot. Yeah. Your father needn't worry. I am a very careful driver. Okay. Encircle the modal verbs in the following conversation. ठीक है, modals बताने हैं आपको इसमें. ठीक है, इस conversation में बताओ. फर्स्ट वाले में could. ठीक है. देन सेकेंड वाले में couldn't. थर्ड वाले में should. देन couldn't. देन might. देन didn't. देन shall. देन will. देन may. देन again may. can't. yes. ओके अब इसको ना हम एडिट करते हैं. लास्ट वाले को एडिट करते हैं. क्या गलत है? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? आप ध्यान लगा रहे हो क्लास में. बॉटल गिरी थी. आप क्लास में तो ध्यान नहीं लगा रहे हो. आपने तो एक भी आंसर नहीं बोला. आप कभी ऐसे सो रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो. क्या हो गया? तो बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. मेरी क्लास खत्म होने वाली है. तब तक आप अटेंटिव रहो. मुझे भी लग रही है प्यास. पानी पड़ा है, मैं नहीं पी रही हूँ. आई एम ऑल्सो स्पीकिंग फॉर यू ओनली ना. Yesterday will be my birthday. Yesterday will be. Yesterday was. Yesterday was my birthday. My father bought me a new dress. It were orange. Was orange and purple in color and. It was orange and purple in color and was beautiful. Was सही तो है. No error. No error. There is many flowers. There are many flowers on it and feels quite comfortable to wear. My sister has given me a pair of matching shoes and my mother has given me a toy. I was happy to get those gifts. Okay. नहीं बेटा, आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी. हाँ आ सकता है. आई एम हैप्पी टू गेट दो. यस, वॉज भी आ सकता है. यस. क्यों करा? वाई? आप लोग ने यही कर लो पहले. लड़ाई झगड़ा सब कुछ यही कर लो. पढ़ाई तो आपको करनी नहीं है ना. ध्यान तो आपको लगाना नहीं है. And my mother had given me a toy. Yes, my sister has given me. नहीं, पर उसने उसको टॉय दिया है ना. दिया है, टॉय दिया है. मुझे मेरी मदर ने एक टॉय दिया है, चाहे कल दिया हो. क्योंकि हमने देखो सिस्टर वाली बात भी करी ना. माई सिस्टर हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ मैचिंग शूज एंड माई मदर हैज़ गिवन मी. और गिवन लिखा है यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट. आगे समझ आया ना? पक्का? ठीक है, पी लो पानी.
मैं भर के लाऊं बोतल। मैं आपका पीरियड खत्म हो गया। ओके, इसके बाद टेंसेस है। नो वेट, अच्छा हमने ये वाला, ये क्या है? आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अच्छा, एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका टेस्ट होते हैं आपके, ये टेस्ट होगा आपका। कोई ले रहा है इसका टेस्ट? मैम कल अगले सैटरडे हमारा वर्ब्स का टेस्ट है। किसने कहा? अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए वो टेस्ट हुए? किसने लिया? अमन सर अमन, मेरी बात आते हैं। यस आए मैम। भी थे, उसके पीछे बैठे थे सर। अच्छा, ओके। और आप लोगों में से कौन कौन किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? सैनिक की? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। तो अभी आप यहाँ पे अपने बेस क्लियर कर रहे हो ना, बिकॉज तभी अभी जब आपका बेस क्लियर होगा आई विल गेट टू अंडरस्टैंड यू कि आप लोग का बेस क्लियर है, उसके बाद ही मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाऊँगी, ठीक है? मैं सैंडी की कर रहा हूँ, उसके बाद आराम से। पर आपको ना थोड़ा कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? मैम मुझे क्या? डिहाइड्रेशन। तो बेटा क्या कर सकते? डिहाइड्रेशन आजकल सबको ही हो रहा है, ऐसे तुम आरएम से थोड़ी ना चले जाओगे फिर। आरएमसी में बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। हम जतिन मिश्रा ने बोला था वहाँ पे रगड़ा होता है। क्या होता है? जतिन मिश्रा ने बोला था वहाँ पे रगड़ा होता है। व्हाट इज़ दैट? रगड़ा। व्हाट इज़ दैट? हम ऐसे स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमें भागने के लिए पूरे ग्राउंड में घुमाएंगे। यस, चलो ओके, दूसरे सर लेंगे क्लास, ठीक है? कैन यू फिल माय वाटर बॉटल? नो